तो पहली बार तो ये है कि घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से 10 से 100 गुना बदतर है। हमारे पोल्यूटेंट्स बड़े स्मार्ट हो गए हैं और ये इतने छोटे साइज़ के हैं कि हमारी आंखों से भी हमें नहीं दिखते। जहाँ भी CO2 प्रॉब्लम है आपको नींद आएगी, अगर आपको नींद आ रही है तो वहाँ CO2 प्रॉब्लम है। एंड दिस इज़, ये बहुत बड़ा हेल्थ हैज़र्ड है। सबसे जो सरल तरीका है प्रदूषण को रोकने का वो है Winter is coming. Are you ready to breathe through it? Hi, I'm Dr. Ishani, and today with us we have Mr. Jaydhar Gupta, a clean air activist, an entrepreneur, and the founder of Nirvana Being, a brand that's been leading a clean air movement in India. Thank you so much for joining with us today. Thank you. Great to be here, Dr. Ishani. Same here, sir. And it's an honor for you to be sitting here and giving us insights about, the air that we breathe. So what is air pollution? Okay. So before I even tell you about what air pollution is, I just want to say that air is something that we cannot live without, right? There are only 3 raw materials we consume: food, water, and air. Food and water combined, we consume about 6 to 8 liters in a day. We consume 12,000 liters of air in a day. Okay, and we cannot live, we can't hold our breath for more than 2 or 3 minutes at max, right? So this is something that's involuntarily kind of going inside us. And air pollution is the presence of pollutants in the air. Okay, the reason it's important is because it's impacting each and every one of us, right? We are what we breathe. There are these pollutants that are entering our body through our respiratory passage, yes, entering our lungs. In the lungs, we have something called the alveoli, which is the bridge to the bloodstream. That's how our blood gets oxygen. I'm kind of saying this to a doctor. It's the obvious, but through that same bridge, these black carbon nanoparticles are entering our bloodstream, and then they create problems for us, neuro problems for us, heart problems for us, diabetes, hypertension, depression, infertility, of course, respiratory problems, COPD, lung cancers, other forms of cancers. The list goes on and on and on. My problem has started with bronchial asthma, and every year I suffer immensely from September to April when the air pollution in North India is at its worst. Yeah. Even while I'm living, I'm not 100%, and I have a problem with that. Yeah. Okay. Why should I not be 100%? Why should I not be hale and hearty and healthy? Why should my child be wheezing? Why is why does my father living with COPD? That's what I have a problem with. International sporting events are happening as if it's a great, healthy day in North India, and it's not. So, we are just normalizing an AQI of 300. And, we're looking at a lot of sick people. If you draw a line from, what is the Grand Trunk of Road of India, which used to run from Karachi to Dhaka, but let's say it runs now from Amritsar to Calcutta, if we want to keep it just to India. We have more than half the population of India lives along this Grand Trunk Road of India, which is also our rivers, the Ganga and the Yamuna, all the industries. A lot of human habitation in India is along the Grand Trunk Road of India. And let me just tell you, the entire GT road, that road, or what we call the Indo-Gangetic Plain, is completely smoked. The rivers flow there because it's kind of topographically, it's kind of it's the bottom part, right? Yes. That's why the rivers are flowing there. So the smoke gets stuck there, and that's where people are living. And the more people that continue to live there, the air pollution is a human problem, right? Wherever there are human beings, there's air pollution. If you go up to Gulmarg or to Ladakh or whatever, like not Leh, but if you go outside of these nice areas, I just want to share that Srinagar is also in the top 20 worst air pollution cities of India, just because it's a valley. People burn stuff to stay warm. People even burn stuff under their kaftans or whatever. They have a matka with coals burning. So this problem is across the board, and in valleys it's even more. And wherever there's high density of people living, our habits are horrible. A lot of people are still burning, chulas. They're chulas with, biomass
or coal or wood or plastic. It's whatever you can find, right? I mean, whatever fuel you can find to, stay warm in the winter months or cook your food. Everything is happening in India. It's not easy to drive behavior change, but that's what we need. We need to educate, and through education and through policy, which is incentivizing good behavior and penalizing bad behavior, we need to change behavior. I mean, that's it. The only solution to this problem is changing behavior. I don't have time to think that there's air outside, and I'm just so occupied with my own things because, again, the invisible factor comes in. The problem is invisible, and it's a slow burn. It's a silent killer. It's not like water where if you drink contaminated water, you're going to be sick immediately after, right? This is a slow burn. It's going to take you down very, very slowly. A lot of people tell me कि इसी में पैदा हुए हैं, इसी में मरेंगे. But the problem is shifting, right? I mean, we're only measuring, we only have the ability through these kind of monitors to measure a few things. We're able to, measure the particulates in the air. We're able to measure, carbon dioxide levels and carbon monoxide and nitrogen dioxide and sulfur dioxide. But, as we move towards smarter fuels, we are creating smarter pollutants as well. Then the use of chemicals and pesticides and the burning of plastic, we are creating it's a cocktail of emissions, and we don't even have the ability to monitor, like I would say 95% of it. We're only monitoring 5% of the pollutants. We don't even know what the 95% are. We don't even have the tools to measure the other pollutants. So if people think it is what it used to be 30, 40, 50 years ago, I'm sorry. My generation, and I'm 50 years old, we've created the problem. Right? My parents' generation didn't have the problem. My children are going to adopt this problem, and they are so checked out and so stuck in their devices and whatnot that I don't even know where that generation is going. But we need somebody to stand up and fight for health and environment and quality of life. People don't want to be inconvenienced because there is no awareness. So awareness precedes change. I'll give you an example. So Paris, once the AQI, the air quality index, it's 150, they make public transportation free. So and they ban diesel vehicles on their roads. So that's incentivizing good behavior and penal. So diesel vehicles pollute. One diesel vehicle has the emissions of 9 petrol vehicles. So like, okay, diesel, goodbye. AQI has touched 150. It's an emergency. And public transportation, you're good. Make it free. So that's just a small example of incentivizing good behavior and penalizing bad behavior. Yes. जैसे सर हम देख रहे हैं कि न्यूज़ में हर जगह आ रहा है that this is going to be the coldest winters and everybody is scared, everybody is like ठीक है heaters खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं. And why do you think this is happening? और ये winters में ही क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है pollution? विंटर में क्या होता है, कोल्ड एयर इन्वर्जन हो जाता है जो ये पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर देता है जहाँ हम सांस ले रहे हैं. तो समर टाइम में विंड स्पीड्स भी ज़्यादा होती हैं. समर टाइम में दैट हॉट एयर राइजेज एंड ऑल दैट द इफेक्ट ऑफ विंड्स इज मोर, तो डिस्बर्समेंट हो जाता है. विंटर टाइम में विंड स्पीड स्लो हो जाती है. कोल्ड एयर इन्वर्जन से ये सारे पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं. आपने बार बार सुना होगा कि दिल्ली स्टक इन अ गैस चेम्बर. दूसरा, विंटर में कुछ ऐसे एपिसोड्स भी होते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारे फार्म फायर्स होते हैं. दिस इज़ एन एज ओल्ड ट्रेडिशन, और ये नॉर्थ इंडिया में ही नहीं है, पूरे इंडिया में होते हैं. आप गोवा भी जा रहे हो तो पैडी बर्निंग के टाइम इफ़ यू आर डाउन विंड, मतलब आई हैव सीन AQI 200-250 गोवा लोगों को खाली पानी और पाम ट्रीज देख के अच्छा लगता है, बट सांस में आप वहाँ भी मर रहे हो. जब रियल विंटर आती है तो फिर तो मतलब हर गरीब आदमी कुछ ना कुछ अंगीठी आग जलाएगा. आप सर्वाइवल का बात आ जाता है और उसको आप मना भी नहीं कर सकते. हर चौकीदार जो घर के बाहर बैठा है वो रात को, मतलब इतनी ठंड है 3 डिग्रीज 4 डिग्रीज 5 डिग्रीज, कुछ ना कुछ हर कोई बंदा जलाएगा, और वो प्लास्टिक भी जला रहे हैं. तो किस तरह की चीज़ें हमारे फेफड़ों में जा रही है हमें कुछ आइडिया भी नहीं है. तो विंटर में इसीलिए ये प्रॉब्लम और सिवियर हो जाता है. एंड मतलब हमने तो दिल्ली में मेजर किया है कि जो हमारा नेशनल स्टैंडर्ड भी है, जो WHO स्टैंडर्ड से 8 गुना है, तो नेशनल स्टैंडर्ड 800% है जो WHO स्टैंडर्ड है, वो भी पिछले 3 सालों में हमने एक ही दिन मीट किया था, September 10th of 2023,
जिस दिन बहुत हवा चली थी और बहुत बारिश आई थी, उसके बाद उस स्टैंडर्ड को भी जो 800% है WHO के लेवल से, हमने आज तक मीट नहीं किया है। ओके, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ, दिल्ली के बाहर तो बाबा साढ़े नाल वाला बात है, क्योंकि मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। PM 2.5 जो है, जो 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल है, उससे कम साइज़ के पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं। 2.5 माइक्रोन से बड़ा जो पार्टिकल है वो यहाँ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अटक जाता है। जब मैं अपना गला सफ़ा कर रहा हूँ तो यहाँ जो बड़े पार्टिकल्स हैं 2.5 माइक्रोन से बड़े, वो मैं क्लियर करता हूँ और मेरे गैस्ट्रो सिस्टम से वो बाहर आ जाते हैं। पर 2.5 माइक्रोन से कम का जो पार्टिकल है, जो कंबशन से होता है, उसकी वरी है, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। सर, बहुत लोग सोचते हैं कि इंडोर, जैसे घर के अंदर, यू नो दैट इट इज़ सेफर और यू नो द एयर इज़ क्लीनर, एंड लाइक आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु वांट्स एंड देयर किड्स आउटसाइड टू प्ले बिकॉज जैसे कि बाहर गुड़गांव में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ डू वी गो अबाउट दिस? इज दिस राइट? इज दिस अ मिथ? और यू नो, और इज इट अ मिसबिलीव्ड कंसेप्शन कि घर इज सेफर देन आउटसाइड? So there are many misconceptions and there's no easy answer to this question. तो पहली बार तो ये है कि ये तो बात पक्की है कि घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से 10 से 100 गुना बदतर है, मतलब वर्स है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप घर के अंदर है तो आपकी हवा स्वच्छ है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे जितने भी घर हैं, जो मटीरियलिटी है, चाहे वो टाइल लगा हुआ है या वुडन फ्लोरिंग लगा हुआ है या पैनलिंग लगी हुई है, इन सब में जिस तरह के एडेसिव्स, पॉलिशेस, वार्निशेस, पेंट, सीमेंट, ब्रिक्स, हर चीज़ ऑफ गैस करती है और हर चीज़ टॉक्सिक है। हमारे सफ़ा करने की भी चीज़ें, अगर आप क्लीनिंग मटेरियल्स ला रहे हैं, अपने परफ्यूम्स, कलोन्स, डिओड्रेंट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ टॉक्सिक है। आपके सोप, शैम्पू, मतलब हम इतने पीने के लिए भी, मतलब आप प्लीज़ स्टील या ग्लास पे ही रहिए, उससे आगे मत बढ़िए। मतलब मैं प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये है, मतलब जो आपके पेरेंट्स और या दादा दादी करते थे, हमें उस पर वापस जाना है। अंदर की हवा बाहर की हवा से बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको एक्टिव और खेलना भी थोड़ा ज़रूरी है तो आप AQI को चेक करिए। विंटर के टाइम जो, या समर के टाइम भी, सबसे बढ़िया जो एयर क्वालिटी होती है वो करीब 3 से 5:30 बजे दोपहर को होती है, जब हवा सबसे ज़्यादा गर्म हो। ओके, तब थोड़ा डिस्पर्समेंट होता है। अगर आपके सुबह और शाम के लेवल्स तो हर टाइम, जब हवा ठंडी है सबसे ख़राब हवा होगी, क्योंकि वो कोल्ड एयर इन्वर्जन, वो हवा का स्पीड भी कम हो जाना, और उसी टाइम लोगों के चूल्हे भी जलते हैं सुबह सुबह और शाम को। सारी रसोइयाँ, कंबशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा, तो वो बैठ जाता है एक तरह से वो धुआं। सर, मैंने रिसेंटली सुना था कि दिल्ली सरकार कुछ क्लाउड सीडिंग शुरू कर रही है। व्हाट इज़ इट? आई मीन, इफ़ यू कैन गिव एन आइडिया, इज़ इट रियली हेल्पफुल? एंड सो क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल रेन करने का तरीका है। ये चाइना ने बीजिंग जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें किया था, क्योंकि अगेन एक्टिव होना जब एयर क्वालिटी ख़राब है, और उस टाइम बीजिंग का एक्चुअली एयर क्वालिटी बहुत ख़राब था। अब जब हमें पता है कि दिल्ली में प्रदूषित हवा है 10 महीने के लिए, आप 10 महीने तो क्लाउड सीडिंग कर नहीं सकते। ठीक है ना। क्लाउड सीडिंग करने के लिए आप हवाई जहाज़ से, जब बादल होंगे दिल्ली के आसपास, आपको एक केमिकल, एक सिल्वर आयोडाइड को डालना पड़ता है हवा में, जो उन क्लाउड्स को बर्स्ट करता है और वो बारिश आती है वहाँ पर। तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। ये सिल्वर आयोडाइड भी टॉक्सिक है, तो टॉक्सिसिटी आप एक हवा से हटाने के लिए एक केमिकल अपने पानी और अपनी मिट्टी में, सॉइल में डाल दें, खाने में डाल दें, वो सिल्वर आयोडाइड फिर एक और टॉक्सिसिटी हमारी लाइफ में आ जाएगी। एक वायु प्रदूषण को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हर देश जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे की तरफ निकलता है, ग्रोथ की तरफ निकलता है, तो वहाँ वायु प्रदूषण का प्रॉब्लम आता है। वो एक केवल तरीका यही है, जो सोर्स है आपका एमिशन का, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो वेहिकुलर है, गाड़ी से है, इंडस्ट्री से है, बायोमास बर्निंग से है, वेस्ट बर्निंग से है, उस सोर्स को आप ख़त्म करो। और हमारी सरकार ने बहुत, इसे कहते हैं सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी, इतना प्रतिशत प्रदूषण जो है वो गाड़ी से आता है, इतना प्रतिशत जो प्रदूषण है वो इंडस्ट्री से आता है, हर महीने की हमने स्टडी कर रखी है। सब डेटा है, एक पॉलिटिकल विल ही नहीं है, और सब डेटा है हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर कोई सॉल्व करना नहीं चाहता।
सो क्लाउड सीडिंग ये एक और तरह का जहर फैलाने का तरीका है। 3-3.25 करोड़ रुपए आपको लगेंगे हर बार क्लाउड सीडिंग करने के लिए, और आप टॉक्सिसिटी और बढ़ा दोगे। और जो बारिश है जो और हमारे किसानों को चाहिए, उस बारिश को आप दिल्ली के लिए लूट लोगे, और बारिश से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगी। शायद घंटों के लिए सॉल्व हो जाए, पर अब हर 4-6 घंटे में तो आर्टिफिशियल रेन नहीं कर सकते। सबसे जो सरल तरीका है मतलब प्रदूषण को रोकने का, वो है मास्क। ठीक है ना? क्योंकि हमारे पोल्यूटेंट्स बड़े स्मार्ट हो गए हैं, और ये इतने छोटे साइज़ के हैं कि हमारी आंखों से भी हमें नहीं दिखते। तो हमें N95 मास्क चाहिए। तो अब मार्केट में बहुत मास्क हैं, हम भी बनाते हैं, जो रीयूजेबल N95 मास्क है, जो वॉशेबल मास्क है, जो मतलब ये मास्क मेरा 2 साल पुराना है, मैं इसको धोता हूँ फिर से। इसके अंदर नैनो फाइबर का फ़िल्टर है जो 0.1 माइक्रोन हेपा से भी ज़्यादा फ़िल्टर करता है। हेपा ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ होता है, तो उससे भी ज़्यादा ये फ़िल्टर करता है पार्टिकल्स को। तो ये इफ़ेक्टिवली सब चीज़ को रोक देता है। और मास्क ऐसा होना चाहिए जो मतलब आप पहने तो आपके बिल्कुल फिट आए, कि आपकी जितने भी हवा आप अंदर खींच रहे हैं अपने फेफड़ों में, वो मास्क के फिल्टर के थ्रू जाए। अगर मैं ऐसा मास्क करूँगा जो इधर से हवा लीक हो रही है या नीचे से हवा आ रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ईजिएस्ट सोल्यूशन एंड द मोस्ट cost effective solution to protect yourself from bad air is a well fitted N95 मास्क, reusable मान, क्योंकि ये एक दिन की प्रॉब्लम तो है नहीं। ये आपको अक्टूबर से मतलब मार्च अप्रैल तक मास्क की ज़रूरत है। 10 महीने के लिए आपकी हवा प्रदूषित है, तो आप एक बंद कमरे में जब बैठते हो, जैसे ये एयर प्योरीफायर जो है वो तभी सक्सेसफुल होगा अगर आप दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर दो। अब हम जैसे बैठे हुए हैं इस कमरे में, खिड़कियां और दरवाजे बंद करके, एक तो जो जितना हमारा ये मटेरियल का ऑफ गैसिंग है उसकी टॉक्सिसिटी में हम बैठे हुए हैं। दूसरा मतलब हर सांस जो हम ले रहे हैं इस हवा में, इस कमरे में ऑक्सीजन कम होते जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा। तो एक कैंसर भी तो एक ऑक्सीजन डेप्रिवेशन ही है बॉडी में। तो ये एयर प्योरीफायर, स्प्लिट एसी, कैसेट एसी, ये सब बहुत बेकार टेक्नोलॉजीज़ हैं। मैं कहूँगा कि ये हमारी लाइफ की सबसे ख़राब टेक्नोलॉजीज़ हैं। जो भी आपको कमरे में बंद कर दे विदाउट वेंटिलेशन, ये तो सेहत के लिए ख़राब ही होगा, मतलब अच्छा नहीं हो सकता। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर आप 3-4 जने या 2 जने भी गाड़ी में बैठते हैं, शीशे खिड़कियाँ ऊपर करके, कि खिड़कियाँ तो अब कोई नीचे रखता ही नहीं है, तो एक नींद आती है। ओके, जब आप प्लेन में बैठते हैं, प्लेन के टेक ऑफ से पहले आपको सबको आधे प्लेन आप देखते हो सो रहा है। वो क्यों सो रहा है? क्योंकि पायलट ने इंजन्स के लिए उसको पावर चाहिए, उसने वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर दिया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है फ्लाइट में कि सारे लोग, और जैसे ही वो 5000 फुट पे प्लेन पे पहुंचता है और वेंटिलेशन ऑन होता है, तो सारा प्लेन एकदम से फिर उड़ जाता है। तो दैट इज CO2। हम इतनी कॉफ़ी क्यों पी रहे हैं आजकल? इसीलिए पी रहे हैं कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ CO2 का प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी सॉल्यूशंस हैं अब फिल्टर्ड वेंटिलेशन के। हमारा भी एक प्रोडक्ट है वेंटीमैक्स के नाम से। सो इसको मैं कलयुग की खिड़की बोलता हूँ, जो बाहर की हवा अंदर लाती है और उसको मतलब अंदर लाने से पहले फिल्टर करके अंदर लाती है। और सारा जो केमिकल पार्टिकुलर्स, जो भी चीज़ ख़राब है, वो फिल्टर लेवल पे ही रुक जाता है, एंड यू गेट ब्यूटिफुल clean pure air inside your bedroom or whichever space that you're trying to clean. तो अगर आपको एक्चुअल सोल्यूशन लेना है तो वो फिल्टर्ड वेंटिलेशन है। पोल्यूशन को लेके ना सर, बहुत लोग ये सोचते हैं कि पोल्यूशन सिर्फ लंग्स अफेक्ट करता है, एंड एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू कि पोल्यूशन या एनी अनक्लीन एयर इज अफेक्टिंग ऑल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी इन सम और द अदर वे। लंग्स वाले इफेक्ट शायद कभी जल्दी दिख जाते होंगे, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म हज़ार्ड, राइट? तो एक्चुअली कब पता चलता है एंड दैट आई एम बीइंग इम्पैक्टेड बाय दिस? हर जने का अलग तरह से ये मैनिफेस्ट करेगा। किसी को एक राइनाइटिस होता है कि वो बलगम बह रहा है, ठीक है ना? किसी को आँखों में जलन, किसी को माइल्ड हेडेक, सर दर्द हो रहा है, किसी को कोल्ड साइनस के फॉर्म में, डिविएटेड सेप्टम के लोगों को, मेरा भी डिविएट सेप्टम है, तो वो मतलब वीजिंग, कि आपके एयर पैसेजेस छोटे होके आपकी थोड़ा कंस्ट्रिक्शन होता है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। तो हर
हर पर्सन में मतलब इनफर्टिलिटी भी जो है वो भी मतलब इट इज़ अ directly related to air pollution, Yeah. or diabetes, hypertension. Up to Resistance. leading cause of cardiac disease, and cardiac is also related to everything. Is even gastro now has Gut issues, yes. Yes, so even depression, neuro issues, everything is coming from this. But तो मैं एक रूल ऑफ थंब चीज़ ये बोलूँगा कि जो आपके पेरेंट्स, जो आपके दादा दादी नाना नानी करते थे 50 साल पहले, उस पे जाइए, वो उनका सब मतलब वो उनका जो फंडास थे वो बहुत बढ़िया थे. मतलब हम तो पूरे मार्केटिंग के से इतना इन्फ्लुएंस होके हमारी सारी ही आदतें बिगड़ गई हैं. एक कन्वीनियंस जनरेशन बन गए हैं. This and this will, help us in the tiniest way possible, and it will contribute to us breathing clean air. Vote for clean air. There's no other way. मैं 10 साल से ये मेजर कर रहा हूँ और मेरे को दिल्ली से 150 किलोमीटर जाना पड़ता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट, टू सी a 5% difference between what we are sitting here in Delhi and there. So we are talking about an airshed. मतलब आप अगर फार्म हाउस में रह रहे हो तो आपकी हवा अच्छी नहीं है, आपको 150 किलोमीटर, मिनिमम 150 किलोमीटर जाना पड़ेगा टू गेट आउट ऑफ द एयरशेड ऑफ दिल्ली. फिल्टर्ड वेंटिलेशन करो, मास्क पहनो, घर के बाहर अपने कपड़े झाड़ो, जूते निकालो, अपने घर में कार्पेट्स या हैवी कर्टन्स और ऐसी चीज़ें जो इस डस्ट को और पार्टिकल्स को के लिए एक सिंक बन जाती हैं. मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि ये घर के अंदर, जैसे हैवी ब्लैंकेट्स, हैवी कर्टन्स, कार्पेट्स, ये सब नहीं होने चाहिए कमरे में. ठीक है ना. फिल्टर्ड वेंटिलेशन तो एक मस्ट है, नहीं तो आप अंदर के ही अपने टॉक्सिसिटी में घुट के मतलब यू आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी सिक. Thank you for informing and enlightening us with all that hard work you've put in the last few years to do this research. And I think this should be a question for every Indian कि हम क्या air breathe कर रहे हैं and what can we do about it, because when we say the invisible or the silent killer, it definitely is, and I think with a brand like yours, Nirvana, coming into picture, this is only going to help us today, tomorrow. तो जितना अवेयरनेस होगा जितना लोगों को समझ होगा उतना बढ़िया है. पर बाहर की हवा की प्रॉब्लम तो हमें सॉल्व करनी ही है. उसके बिना तो मतलब हमारी जो ये दिल्ली शहर है, नेशनल कैपिटल है, वही ह्यूमन हैबिटेशन के लिए वायबल नहीं है. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट that I'm making, that this city is not fit for human habitation. Thank you so much, Jay, for telling us how we can breathe better by guiding us, how using the right protection and monitoring our air can help us secure our future. Thank you. Until next time, breathe wisely, live mindfully.